Good afternoon, students. This is your computer class. Students, in this class, we will start a new chapter, chapter 3, types of software. Students, we already know that the computer is the combination of the hardware and the software. In our chapter 2, we have already learned about the types of hardware, and in chapter 3, we will talk about the types of software. So, student, hardware represent the physical and tangible component of the computer, whereas software represent the set of programs that govern the operations of a computer system and make the hardware run. यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स है. इट मीन्स कि इट इज़ अ program that is used to run the hardwares. So, student, see this chart. Software are the two types mainly. First is your system software and second is your application software. अगेन जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डिवाइडेड है इन 4 पार्ट्स: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़. एंड योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: पैकेजेस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस. यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर्स को रन करने में हमारी हेल्प करता है, कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है. दैट दिस सॉफ्टवेयर्स आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर set of programs necessary to carry out operations for a specified application. It means the software which are used to carried out a specific operation. ये किसी स्पेशल, इट मीन्स सपोज आपको रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन करवानी है, तो रेलवे रिजर्वेशन का जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर है वो आपके स्कूल का रिज़ल्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता. तो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड application software. Okay, so first of all we will discuss about the system software. A computer is merely a machine that know nothing of itself, rather it requires instruction for each and everything it perform. These instructions are provided to it through software, the software that control internal computer operations, like reading data input devices from the input devices, transmitting processed information to the output devices, checking system components, converting data instruction to computer understandable form, etc. is known as system software. So students, system software वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स में इनपुट यानी कि हार्डवेयर्स के थ्रू जो डाटा एंटर किया है उसे रीड करने में हेल्प करते हैं, और हमें जो यूज़र को प्रिंट आउट देना है या आउटपुट देना है तो उससे किस कंपोनेंट्स के थ्रू देना है, तो जो कंपोनेंट्स तक यानी कि प्रिंट्स देने में हमारी हेल्प करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सॉफ्टवेयर इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, जो डाटा को रीड करने में हेल्प करते हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में जो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द system software is operating system. It acts as an interface between user and the hardware. So student, an operating system is a program which acts as an interface between a user and the hardware computer resources. Operating system is just like our secretary, as the boss gives order to his secretary and the secretary does all the work for his boss. The secretary himself decides how to do, what to do, when to do, etc. Same way we pass our orders request to the operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोज हम सॉन्ग प्ले करने के लिए कमांड करते हैं, ठीक है, ऑर्डर देते हैं, तो वो किसके पास ऑर्डर कौन रिसीव करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. और ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑर्डर रिसीव करके बाद में उसे स्पीकर तक या सिलेक्शन के लिए लेकर जाता है वो भी कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट टू डू कि कौन सा सॉन्ग प्ले करना है, तो आप जब जिस सॉन्ग पर क्लिक किया आपने तो उस सॉन्ग को रिकॉग्नाइज़ करना किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का. और उसी सॉन्ग को स्पीकर तक पहुंचाना यानी कि स्पीकर में प्ले करने का काम जो है वो किसका है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम itself decided how to do, what to do, when to do. The primary goal of an operating system is just to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in an efficient
ऑपरेटिंग सिस्टम का मेनली पर्पस होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम से जितने भी हार्डवेयर अटैच हैं, ओके, वो जो है प्रॉपरली यूज़ होते रहें। उनका क्या यूज़ है, ओके, और वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी आपके कंप्यूटर से हार्डवेयर अटैच हैं, जो आपके हार्ड डिस्क में डाटा सेव होता है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है, स्पीकर से आपकी साउंड आपको मिलती है, ओके, तो दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। आवर नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इज़ ऑल्सो नोन एज द लैंग्वेज कन्वर्टर, यानी कि लैंग्वेज कन्वर्टर क्या करता है, आपका एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लाइक सी द पिक्चर, सपोज दिस इज़ योर लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज कन्वर्टर प्रोसेसर। जो ये पर्सन है, आई नो इंग्लिश ओनली, इससे सिर्फ इंग्लिश आती है। आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच, इससे फ्रेंच नहीं आती। लेकिन ये क्या कह रहा है आपका, आई नो इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। टू ह्यूमन बींग्स जो है आपस में बात करें, इसे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज आती है और इसे सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज आती है। तो ये दोनों एक दूसरे से बात कैसे करेंगे और किस तरह से एक दूसरे की बात समझेंगे, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्टर और विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेटर। कन्वर्टर को हम इंटरप्रिटेटर भी कहते हैं, ठीक है। तो बट अभी इसको क्या है, इसको इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी फ्रेंच में कन्वर्ट कर सकता है और फ्रेंच को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द कन्वर्टर और इंटरप्रिटेटर। सेम आप उसको लैंग्वेज में कैसे करते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में। सपोज वी हैव रिटन अ प्रोग्राम, इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 ग्रेड पी यानी कि पास दें, अदरवाइज एल्स ग्रेड एफ फेल कर दें, एंड इफ। ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो कंप्यूटर समझ नहीं आती, वो सिर्फ डिजिटल मशीन है, तो किसकी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की। तो बीच में लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर है, इंग्लिश लैंग्वेज के इन वर्ड्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल लैंग्वेज में, जो कि किसकी फॉर्म में आ जाएगा, आपका मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। और मशीन लैंग्वेज फिर सेम जो भी आउटपुट आपका कंप्यूटर आपको देगा, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास जाएगा। लैंग्वेज ट्रांसलेटर अगेन उसको ट्रांसलेट करेगा इन इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आ जाएगी आपकी आउटपुट, और वो आउटपुट आपको मिल जाएगा, ओके। तो मशीन लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत हाई होते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, वो होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि वो मशीन को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी होती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, ओके। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट इज असेंबलर। दिस लैंग्वेज ट्रांसलेट कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी कि असेंबलर सिर्फ आपका असेंबली लैंग्वेज के लिए होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रिटेटर, दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कन्वर्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इट लाइन बाय लाइन, ओके। इंटरप्रिटेटर भी आपका एक क्या होता है, कन्वर्टर होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट इंटरप्रिटेटर क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की 1 बाय 1 एक लाइन को जो है कन्वर्ट करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन एनी लाइन, इट रिपोर्ट इट एट द सेम टाइम एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैन नॉट रिज्यूम अंटिल द एरर इज़ रेक्टिफाइड। तो इंटरप्रिटेटर में क्या होता है कि लाइन बाय लाइन आपकी लाइन्स, प्रोग्राम की लाइन्स को कन्वर्ट करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो जहाँ पर भी किसी प्रोग्राम में कोई भी एरर है, तो ये क्या करेगा कि उसी टाइम प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा, एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा, और पहले जो है हमें उस एरर को शो करेगा कि इसमें ये एरर है। जब तक वो एरर रेक्टिफाई नहीं होगा तो ये नेक्स्ट लाइन पर मूव नहीं करेगा। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंटरप्रिटेटर। बट इन कंपाइलर इज़ ऑल्सो अ हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्टर, कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट ये किस तरह से करता है, बट द कन्वर्जन मैनर इज़ डिफरेंट। इट कन्वर्ट द एंटायर हाई लेवल प्रोग्राम इन वन गो एंड रिपोर्ट ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स। आपका इंटरप्रिटेटर क्या करता है कि 1 बाय 1 एक लाइन को कन्वर्ट करता है, और जहाँ पर भी उसको एरर मिलती है वो वहाँ पर स्टॉप कर देता है और उसको एरर को शो करता है। बट इन कंपाइलर में क्या होता है कि आपका पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में पूरे में
और कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, और लास्ट में जो है लाइन नंबर के साथ आपकी एरर्स को डिस्प्ले कर। तो दैट इज़ द मैनर ऑफ अ कंपाइलर. If we combine interpreter and compiler, it gives the best combination for high-level program translation into object or for the error removal. Interpreter can be used, and after all the errors are removed, the program can be compiled, enabling the removal of the language translator from the memory. So if we combine interpreter and compiler, अगर हम दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं तो बेस्ट रिज़ल्ट आता है. क्यों? फॉर द एरर रिमूवल इंटरप्रिटेटर कैन बी यूज. तो एरर रिमूवल किसके थ्रू हो जाएगा? आपका इंटरप्रिटेटर के थ्रू. एंड आफ्टर ऑल द एरर्स आर रिमूव. जैसे ही एरर्स पूरे रिमूव हो जाएंगे तो प्रोग्राम कैन बी कंपाइल्ड, एनेबलिंग द रिमूवल ऑफ द लैंग्वेज ट्रांसलेटर फ्रॉम द मेमोरी. तो कंपाइलर क्या करता है? आपका कंपाइलर का एक फंक्शन होता है कि जैसे ही उसने अपना प्रोग्राम पूरा एरर फ्री प्रोग्राम एक बार कन्वर्ट कर दिया तो वो मेमोरी को जो है वो फ्री कर देता है. मीन्स कि मेमोरी में से आपके कंपाइलर की कोडिंग जो है वो डिलीट हो जाती है. वो कन्वर्ट एक बार प्रोग्राम कन्वर्ट करने के बाद दोबारा उसे कन्वर्ट नहीं करता. लेकिन इंटरप्रिटेटर क्या होता है कि जितनी बार भी प्रोग्राम वो रन होगा उतनी बार ही वो उसको कन्वर्ट करेगा. ओके, तो इसीलिए हमेशा इंटरप्रिटेटर आपके मेमोरी में रहता है. लेकिन कंपाइलर का फंक्शन ये है कि वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है, ना स्पेस फ्री कर देता है. तो इसलिए कंपाइलिंग, जब आप मेमोरी का स्पेस अगर फ्री करना चाहते हैं तो कंपाइलिंग जो है बेस्ट है यूज़ करने के लिए कंपाइलर. और आप वन बाय वन एरर्स को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, एरर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरप्रिटेटर जो है वो यूज़फुल है. तो इसलिए अगर हम दोनों का एक साथ यूज़ करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है फॉर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेशन फंक्शन में. ओके, नेक्स्ट इज़ योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. स्टूडेंट्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को स्मूथ चलने में, जो है स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. लाइक कि आपके कंप्यूटर जो है वो हैंग ना हो बार बार. ठीक है, उसमें जो अनवांटेड फाइल्स हैं वो आपके कंप्यूटर में स्पेस क्रिएट ना करें, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, परमानेंटली आपके हार्ड डिस्क से डिलीट हो जाए. तो इन सब के लिए जो आपका कंप्यूटर जो है वो एरर फ्री वायरस फ्री रहे, तो उसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. तो उसमें फर्स्ट आपका आता है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन या डिस्क क्लीनअप. डिस्क क्लीनअप और डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्या करता है? आपके फाइल से आपके कंप्यूटर से अनवांटेड फाइल्स को क्या कर देता है? डिलीट कर देता है. नेक्स्ट इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को वायरस फ्री करने में हेल्प करता है. ओके, next is encryption and decryption software. Encryption refer to the conversion of electronic data into another form, encrypted form called ciphertext, which cannot be easily understood by anyone. यानी कि आपका डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ और शेयरिंग और ऑन द इंटरनेट, तो वो आपका टेक्स्ट जो है इंक्रिप्शन की फॉर्म में, यानी कि जो आपका डिजिटल डाटा है वो चेंज हो जाता है किसी अनदर फॉर्म में और वापस रिसीवर के पास जाके वो सेम आपके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है. दैट इज़ कॉल्ड द डिक्रिप्शन, इज़ अपोजिट ऑफ इनक्रिप्शन. ओके, और जब वो डाटा जो आपका डाटा है वो कन्वर्ट हुआ है जो इनक्रिप्शन में, तो उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं साइपर टेक्स्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर इज़ योर क्लास फिनिश. एवरीवन वॉच द वीडियो केयरफुली and read the chapter.